عائشہ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی کہ کیسا خوفناک بھیانک میں نے خواب دیکھا کہ ایک کالا بلہ بیٹھا میری گال پہ اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا کہ اسی لمحے اس کی نگاہ اس کے سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے اس کالے بلے پہ پڑی جو اپنی زبان اس انداز میں بیٹھا نکال رہا تھا جیسے خواب میں اس بلے کو اپنی زبان نکالتے ہوئے اور چاٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی وقت اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی وجہ سے اس کی فوراً ماں کی بھی آنکھ کھل گئی اور فوراً ماں کی آواز آئی، عائشہ 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 کیا ہوا ہے میری بچی؟ لگتا ہے تم خواب میں ڈر گئی ہو، کیا ہوا بچہ؟ عائشہ نے اپنے کانوں پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ ہلکی ہلکی اب چیخیں مار رہی تھی، لیکن جو اس نے زور سے چیخ ماری تھی شاید گھر کے ایک دو لوگوں نے جو گہری نیند نہیں سوتے تھے وہ چیخ بھی سن لی اور وہ جلدی سے اٹھ کے آ گئے اور دروازہ آ کے باہر سے کھٹکھٹا دیا، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو عائشہ کی والدہ نے کہا ہاں عائشہ میرے خیال میں خواب میں ڈر گئی ہے، سب خیریت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، سب خیریت ہے، اور وہ لوگ باہر چلے گئے۔ ماں نے عائشہ کو ریلیکس کیا اور اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، اور عائشہ نے تب ماں کو بتایا کہ پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا خواب ہے، میں جاگ گئی اور جب میں نے دیکھا ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، اور جب میں پھر سے سوئی میں نے پھر خواب دیکھا ایسے بلہ میری گال پہ بیٹھا چاٹ رہا ہے، اور جب میں خواب سے جاگی ہوں تو میں نے دیکھا ایک کالا بلہ بیٹھا تھا اور اس نے ویسی ہی زبان نکالی ہوئی تھی جیسے وہ میں نے خواب میں اس کو اپنی زبان سے میری گال پہ چاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ماں نے کہا بیٹا لیکن جب تم چیخ ماری اور جاگی ہو اسی وقت تو میں بھی جاگ گئی ہوں، اور اسی وقت میں نے دیکھا ہے تمہاری سائیڈ پہ کوئی بھی بلہ نہیں تھا، میری بچی لگتا ہے تم خواب میں ڈر گئی ہو، جو تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے نا، ان دنوں میں کئی لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں، کوئی بلہ نہیں ہے۔ ماں نے بیٹی کو گلے سے لگا دیا کہ بیٹی ڈر رہی ہے، پہلے رضائی میں اس طرح بلے کو دیکھا تھا اور بھی ماں نے اٹھتے ہی دیکھ لیا تھا کوئی بلہ نہیں ہے، اس نے کہا ماں میں نے بلے کو دیکھا ہے، بلہ ہے کہیں؟ ماں نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا بیٹا نہیں ہے، اس کو چپ کرایا، خیر ریلیکس کیا، اس کو نارمل کیا، اور ماں اس کے ساتھ لیٹ گئی اور پڑھ کے اس کے اوپر پھونکتی رہی۔ صبح ہوئی، گھر والوں نے پوچھا رات خیریت تھی؟ کیا ہوا؟ عائشہ نے چیخ ماری تھی اور ہم تو جاگ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ خواب دیکھ رہی تھی، شاید خواب میں ڈر گئی ہے، ایسا ہوتا ہے، ان دنوں میں لڑکیاں شرمیلی ہوتی تھیں، تیز تراری ان میں ہوتی نہیں تھی، یہ ایک عام سی باتیں سمجھی جاتی تھی۔ اب اس گھر کے اندر پھر سے چہل پہل شروع ہو گئی، اور یوں کہا کہ اب جو لڑکی کی جیولری وغیرہ ہے، جو اس کے زیورات وغیرہ بنوائے گئے ہیں وہ نکالے جائیں اور آج رات اس کو پہنائے جائیں اور فنکشن میں اس کو اس طرح کیا جائے جس طرح ایک رسومات ہوتی ہیں ان کی اپنی۔ تو عائشہ کی ماں جہاں پہ اس کمرہ ان کو دیا گیا تھا اس کے اندر وہ جو ان کے سوٹ کیس وغیرہ تھے انہوں نے رکھے تھے، لیکن پہلے ہی دن آ کے جو زیورات تھے انہوں نے اٹھا کے احمد کی ماں کو دے دیے تھے کہ آپ اپنے پاس جو قیمتی جگہ ہے وہاں پہ رکھے، شادی والا گھر ہوتا ہے اس میں ڈر ہوتی ہے، سوٹ کیس تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، لوگ آ جا رہے تھے، اس لیے ایک احتیاطاً انہوں نے پہلے دن آتے ہی وہ زیورات سارے اٹھا کے احمد کی ماں کے حوالے کر دیے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت فرمائش کی کہ وہ زیورات جو ہیں وہ ذرا نکالیں اور باقی چیزیں اس طرح ساری سیٹ کریں۔ احمد کی ماں نے کہا جی ٹھیک ہے میں وہ لے کے آتی ہوں اپنی بہو کے لیے۔ وہ گئیں اور انہیں جا کے کھولا اور جیسے ہی دیکھا تو وہاں پہ زیورات موجود نہیں تھے۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ جس جگہ پہ انہوں نے زیورات رکھے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اس جگہ سے کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، تو زیورات کہاں گئے؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو کے آئی اور آ کے بتایا کہ زیورات نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، شوہر کو بلوایا، وہ آئے تو بولے ہاں خیریت ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انہوں نے زیورات رکھوائے تھے عائشہ کی ماں نے، زیورات نہیں ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے کہہ رہی ہو تم؟ کہاں چلے گئے زیورات؟ اتنا زیادہ زیورات تھے۔ کمرے کو چھان مارا گیا، کمرے کو دیکھ دیا گیا، وہ لاک جس کے اندر رکھے گئے تھے ہر جگہ پہ دیکھا گیا، ہر چیز اپنی جگہ پہ ویسی کی ویسی موجود تھی، ایسا کوئی نشان نہیں تھا جیسے کس نے توڑا ہو یا کوئی آیا ہو گیا ہو، زیورات نہیں تھے۔ اب عائشہ کی ماں کو اس انداز میں جواب دیا شوہر کے کہنے پہ احمد کی ماں نے کہ ان کو ابھی کہو، ابھی ان کو مت بتاؤ، کوئی دیکھتے ہیں پتہ کرتے ہیں، ان کو کہو وہ ذرا دیتے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا میں ذرا کام سے فارغ ہو لوں، وہ ذرا دور میں نے بھی احتیاطاً رکھوائے تھے کہ وہ ادھر ادھر نہ ہو، جو میں آپ کو دیتی ہوں، اس طرح بہانہ کر کے اب وہ شوہر کی طرف دیکھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بزرگوں سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ گئے، اب خالو سب سے بزرگ تھے اس پورے گھر کے اندر، سب سے بزرگ، اور وہی ایک سمجھدار بھی تھے جس سے سارے مشورہ بھی کر رہے تھے۔ خالو سے مشورہ کیا گیا، خالو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، زیورات کہاں گئے؟
उन्होंने कहा जी पता नहीं है, तो अब बड़ी बेइज्जती वाली बात है, अब क्या करें, ज़ेवरात क्या फ़ौरी तौर पे तैयार करवाएं, उनको बता दें, अगर वो भी हमारी बच्ची है, एक ही घर है, कोई वो तो नहीं है, लेकिन मामला क्या हो गया है। अब खालू ने कहा इसको देखते हैं मामले को, ये तो बड़ा सीरियस मामला हो गया है कि ज़ेवरात कहाँ चले गए। उसी रात सारे जब सोए हैं तो अहमद भी उसी तरह उसी जगह पे जहां पे सारे मर्द सोए हुए थे, रात को नींद में उसको महसूस हुआ कि काले स्याह हाथ हैं, उसके आगे 3 उंगलियां हैं, 5 नहीं 3 उंगलियां हैं, उन उंगलियों पे भी बाल हैं और उन 3 उंगलियों के आगे नाखून हैं, जैसे उसके नाखून होते हैं मुर्गी के, या मुर्गा होता है, मुर्गे के उंगलियों के आगे जैसे नाखून होते हैं, लेकिन मुर्गे के पाँव के ऊपर बाल नहीं होते। वो बालों से भरे हुए 3 पाँव थे, उसके नाखून मुर्गे की तरह थे, और वो 2 हाथ जिसकी 3 उंगलियां थीं वो उसकी तरफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और उन्होंने आके अहमद की गर्दन दबा दी है। जैसे ही अहमद की गर्दन दबाई, अहमद का सांस बंद होना शुरू हो गया, वो परेशान हो गया और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ें निकलनी शुरू हो गया। वो आवाज़ें नहीं निकल रही इंसान की, क्योंकि उसका सांस बंद होता जा रहा है, कोई उसकी गर्दन दबा रहा है, और यूं उसका वजूद तड़पना शुरू हो गया। उसने तड़पते हुए कहीं रजाई के अंदर ही अपनी टांग कहीं इधर उधर मारी, तो 7 खालू उस दिन कुदरती लेटे थे, जो उसका भला हुआ, क्योंकि खालू जहां दीदा थे कुछ उनको समझ आ रहा था, उनको कुछ शक पड़ गया था। उसी रात ही वो परेशानी में उसी के साथ ही लेटे थे, और जब उनको टांग लगी, वो तो बुजुर्ग बंदे थे, फौरी तौर पे जाग गए, और जब उनकी आंख खुली तो देखा साथ लेटा अहमद अजीब आवाज़ें निकाल रहा है, तड़प रहा है। जल्दी से उठे और उसको हिलाना शुरू कर दिया, और जैसे उसको हिलाया तो बड़ी मुश्किलों से उसने गहरी सांस ली और सांसें लेना शुरू हो गया। उसे बोले क्या हुआ, क्या हुआ। बाकी सारे लोग सो रहे थे, कमरे के अंदर एक छोटी रोशनी जल रही थी, लेकिन अब गहरी सांसें लेता अहमद उठ के बैठ गया था। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि एक ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, कोई मेरी गर्दन दबा रहा था। खालू ने कहा परेशान मत हो, कोई बात नहीं, ऐसे ख्वाब नज़र आ जाते हैं, और उसको मुतमईन किया कि ख्वाब में ऐसा महसूस था। उसने कहा लेकिन खालू ये देखो मेरी गर्दन पे दर्द हो रहा है, और उसी वक्त खालू ने नोट कर लिया उसकी गर्दन पे निशान थे बाकायदा नाखूनों के, जैसे उसकी गर्दन पे किसी ने नाखून मारे हों। लेकिन खालू ने उसको बताया नहीं, कहा लेटो कोई बात नहीं। खालू ने उसको लिटा दिया। सुबह हुई, सब चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, लेकिन खालू कुछ चुप चुप से थे। वो अहमद के वालिद से मिले और बोले कुछ मामलात गड़बड़ से हो रहे हैं, एक ज़ेवरात का चले जाना, और उसके बाद अहमद की रात एक अजीब सी हालत थी। तब खालू को बताया गया कि मिठाई का भी इस तरह ख़राब होना, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, किसी की नज़र लग गई है खालू या क्या हुआ है। खालू ने कहा रुको, मैं इसका कुछ ना कोई हल करता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। अहमद भी उठा, नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद वो घर के अंदर ही था। उसको माँ ने काम भेजा कि जाओ आयशा की अम्मी से बोल के आओ कि बस आज शाम तक आपको जेवर दे देंगे। ये खालू ने कहा था कि उनको कह दें शाम तक आपको जेवर दे देंगे, कहीं रखवाए थे वहां से उठवा रहे हैं। अहमद जब उनको कहने के लिए गया उसी कमरे में जहां पे आयशा और उसकी वालदा सोती थी, तो वो कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ तो सामने आयशा बैठी थी और वालदा नहीं थी। अहमद ने कहा अम्मी किधर है, तो आयशा ने कहा वो तो बाहर हैं, क्यों क्या हुआ। उन्होंने कहा अम्मी से बात करनी थी। तो आयशा चलती हुई उसके पास आ गई, और जैसे उसके पास आई उसी लम्हे आयशा ने इतनी जल्दी और इतनी जोर से उसको धक्का दिया कि वो बाकायदा एक कदम, जिस तरह इंसान एक कदम पीछे जाता है ना, दरवाजे के पास ही खड़ा था, एक कदम उड़ा है और ठा करके दरवाजे के अंदर लगा है। दरवाजा खुला है और वो बाहर जाके गिरा है, और वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गया, आए मुझे चोट लग गई, आए मुझे चोट लग गई। घर वाले भागते हुए आ गए, और जैसे ही भागते हुए क्या हुआ क्या हुआ, आयशा की अम्मी भी आ गई, क्या हुआ। उसने कहा मुझे आयशा ने धक्का दिया है, वो खड़ी है अंदर। आयशा की माँ परेशान हुई, कहती है आयशा को धक्का दिया, आयशा तो किचन में मेरे साथ काम करा रही है, आयशा कहाँ है। उसने कहा अभी अभी कमरे में है, अभी अभी उसने मुझे कमरे में धक्का दिया, वो करा रहा था। इतनी देर में आयशा भी पीछे से आ गई। वो सारे हैरान हो रहे, वो कह रहे हैं आयशा ने मुझे धक्का दिया है और मैं नीचे आके गिरा हूं। आयशा उधर से निकल रही थी।
घर वालों ने कहा, बाकियों ने भी कहा भी आयशा तो अभी अभी वहां पे थी, वो तो आई ही नहीं, कब की बात है? उसने कहा अभी अभी तो मुझे धक्का दिया। उन्होंने कहा वो तो हमारे साथ खड़ी थी, जब तुम चीखे हो तो हम सारे भागते हुए तुम्हारे पास आ गए, आयशा भी पीछे आई है। हैं? उसने कहा मैंने क्लियर आयशा को देखा, आयशा ने मुझे धक्का दिया है। अब घर वाले भी सारे परेशान कि यार मामला हो क्या रहा है, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं। उसको घर उठाया गया, उठा के खालू को बताया गया अभी आयशा ने धक्का दिया है। आयशा दूसरे कमरे में थी। खालू कह रहे हैं मेरा जो शक था वो अब यकीन में बदलता जा रहा है, मामलात खराब हैं। खालू ने कहा बुलाओ उसको। अहमद को बुलाया गया। अब घर के लोग सारे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। खालू ने कहा बैठो। अहमद सामने बैठ गया। वो करा रहा था कि उसको दर्द लगी हुई थी। खालू ने कहा चुप करके ज़रा बैठो। खालू ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया तो अहमद अपनी जगह पे बैठे बैठे एकदम से चुप हो गया। उसका चीखना हिलना ऐसे जैसे बुत सा बन के बैठ गया, और उसने एक निगाह से खालू को देखा और फिर नीचे देखना शुरू कर दिया, और खालू पढ़ते पढ़ते चुप हो गए। बाहर उठे, अहमद वहीं पर बैठा हुआ था। अहमद के वालिद से कहते हैं इर्द गिर्द कौन ऐसा बेहतरीन कारी है जो अमलियात जानता हो, जो रूहानियत जानता हो। उन्हें कहा अपने कारी साहब तो बहुत अच्छे हैं इस मामले में, दूर दराज से लोग उनसे इलाज कराने के लिए आते हैं, तो कहते हैं फौरी जाओ उसको बुला के लाओ। उन्हें कहा हुआ क्या है? कहते हैं वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। अब घर वाले मर्द जो मर्दों में वो बैठा हुआ था, 5-6 लोग वहां पे बैठे हुए हैं। अहमद अभी चुप करके बैठा हुआ है। तो इतनी देर में कारी साहब को वो लेके आ गए। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सब खैरियत है? क्या हुआ है? उनको बताया गया है कारी साहब मैंने पढ़ाई की है, आप पढ़ाई करके चेक करें, मुझे लग रहा है ये भारी है, इसका वजूद भारी हुआ है। कारी साहब ने कहा अल्लाह खैर करे, मुझे वजू करने दें। कारी साहब ने वजू किया, और वजू करने के बाद एक पानी का जग मंगवाया, अपने सामने रखा और बैठ गए अहमद के सामने। उन्होंने अहमद की ये छोटी वाली जो उंगली होती है, ये वाली अपने हाथ में ऐसे कस के पकड़ ली, ऐसे हाथ से ना छोटी उंगली को कस के ऐसे पकड़ लिया, और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही पढ़ते गए तो थोड़ी देर के बाद अहमद के वजूद ने झटके लेने शुरू कर दिए। और जैसे उसके वजूद ने झटके लेने शुरू कर दिए, तभी कारी साहब ने पढ़ते पढ़ते उसकी उंगली को छोड़ दिया और कहा मैं माजरत खा हूं, जितने भी लोग बैठे हैं आप लोग बाहर चले जाएं। खालू को कहा आप यहीं पे रुकें, बाकी बाहर चले जाएं। और उसके बाद सब बाहर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, और उन्हें फिर वहीं पे ज़ोर से खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी। जैसे ही थोड़ी देर हुई कुरान मजीद की तिलावत हुई तो फौरी तौर पे अहमद के अंदर से हाजिरी होना शुरू हो गई। और जैसे ही अहमद के अंदर हाजिरी हुई, अहमद का जो वजूद कांप रहा था वो रुक गया था, और अहमद की आंखें लाल सुर्ख हो गई। अब वो ज़मीन पे बैठा हुआ था, वो अपने उस टूट हाथ जिसके ऊपर एक केयर करता था वो उसको भूल चुका था, उसके हाथ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। और कारी साहब बोले तू उसके अंदर ही आ गया है, कौन है तू, बोल कौन है तू। वो चुप रहा। कारी साहब ने वो पानी दम किया हुआ जो था उसके उठा के अहमद के ऊपर छींटा मारा, तो अहमद के अंदर से एक चीख निकली। वो जो एक आवाज़ थी धाड़ने की आवाज़, वो अहमद की नहीं थी, किसी और की आवाज़ थी। कौन है तू, बोल नहीं तो दोबारा तुझ पे पानी फेंकूंगा और तुझे तकलीफ दूंगा, कौन है तू। उसने कहा मैं एक जिन हूं। किस मजहब से ताल्लुक है तेरा? उसने इस्लाम नहीं एक और मजहब बताया। क्यों आया है तू इसके अंदर? आगे से खामोशी। फिर गुस्से में बोले बोल क्यों आया है इसके अंदर? मैं इसको मार दूंगा, अब वो मेरी है। वो तेरी है? कारी साहब बोले तू इसको मार देगा, वो कैसे तेरी हो गई? कौन तेरी है? वो मेरी दुल्हन बनेगी, अब वो मेरी है, मैं उसको हासिल करके रहूंगा, इसको मार दूंगा। कारी साहब बोले ये पूरा जग मैं तेरे ऊपर फेंक दूंगा पानी का, इसलिए बेहतर तेरे हक में यही है कि मुझे शुरू से बता, तफसील से बता, तू कौन है, कहां से आया है और क्यों तूने अभी अभी इसके जिस्म पे कब्जा किया है। उससे पहले तो तू कमरे में मौजूद था।
जब मैं पढ़ रहा था इसकी उंगली को पकड़ के, तू कमरे में था, मैंने लोगों को भेजा और तूने भाग के इसके वजूद का ही सहारा ले लिया ताकि तुझे मैं नुकसान ना पहुंचा सकूं, और अगर मैं मारूं या कुछ करूं तो इसके वजूद को नुकसान हो। तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास रब का कलाम है, मैं तुझे तकलीफ दे सकता हूं। नहीं यकीन तो ये देख, पानी भरा और उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा पानी फेंका तो अंदर से चीखना शुरू हो गया, रुक जाओ रुक जाओ। कारी साहब बोले, बोल अब मुझे बता। तब उसने बताना शुरू किया कि जब ये लोग उस होटल पे रुके थे, मैं उस होटल के पीछे बने हुए दरख्तों पे बैठा था। ये लोग वहां पे चाय वगैरह पी रहे थे और मेरी निगाह उस लड़की पर पड़ी थी। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि यह दुल्हन है, लेकिन उस लड़की को जैसे मैंने देखा तो मैं उस पर दिल हार बैठा। ऐसी खूबसूरत लड़की और ऐसी मासूम लड़की कि मैं उस पर फिदा हो गया। जब ये लोग बस के अंदर बैठ गए तो मैं भी उस बस की छत पे सवार हो गया था, और जब लोग ये यहां पे पहुंचे तो मैं भी इनके साथ इसी घर में आ गया। जब वो मिठाई लेके आए थे तो वो मिठाई मैंने खराब की थी। अब वो डर गया था, उसके ऊपर ऐसा पानी का जबरदस्त छींटा पड़ा था कि खुद ही खुद बोलता जा रहा था कि वो मिठाई मैंने खराब की थी। और उसके बाद अहमद को जो धक्का दिया गया था जिससे उसके बाजू पे चोट पहुंची थी, वो बोला वो भी मैंने किया था, ये बच गया। मैं इसका बाजू तोड़ना चाहता था लेकिन ये बच गया। फिर उसने बताया कि वो जो आयशा के सर में मुसलसल दर्द हो रहा था मेरी वजह से हो रहा था। मैं जब भी आके उसके माथे पे हाथ टच करता था तो उसका सर का दर्द शुरू हो जाता था। उसको मेरे हाथों की तपिश से शदीद बेचैनी होती और उसको दर्द होता, और यहां आके भी मैं उसको मुसलसल छूता था। और उसने वो जो बिल्ला देखा था वो मैं ही था, जो उसने ख्वाब में देखा और बाद में हकीकत में उसको नजर आया, वो मैं ही था। और उसने बताया जो अभी तक इन लोगों को भी नहीं पता था कि फिर से एक वाकया उसने बता दिया कि दोबारा से आयशा डरी थी और दोबारा से उसने कमरे के अंदर एक बिल्ले की आवाज को सुनी थी और उसकी आंख खुल गई थी। खालू को जो बातें बताई गई थी उसमें ये वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई गई थी, सिर्फ आयशा और उसकी मां को पता थी कि उसकी आंख खुल गई थी आयशा की, और तभी उसने कमरे के अंदर एक बिल्ले की गुर्राने की आवाज सुनी थी और उसने अपनी मां को जल्दी से जगा दिया था, अम्मी देखो बिल्ला गुर्रा रहा है। और जब मां जागी थी तो मां ने भी बिल्ले के गुर्राने की आवाज सुन ली थी। उसी वक्त वो जल्दी से उठी, देखा दरवाजा अंदर से बंद है, इधर उधर हर जगह पे देखा, बिल्ला नहीं था, लेकिन गुर्राने की आवाज सुनी थी। उसने कहा वो मैं ही था जो कमरे में गुर्रा रहा था, और आयशा की मां ने भी मेरी आवाज सुन ली थी। और उसके बाद वो सब बताता गया कि उस घर में जो कुछ होते गए। तो तभी खालू बोले, कारी साहब से ऐसे इशारा किया कि मैंने कुछ बोलना है। कारी साहब ने इशारा किया, हाँ बोलें। उन्होंने कहा इससे पूछें जेवरात इसी ने उठाए हैं। तो कारी साहब बोले, हाँ जेवरात तूने उठाए हैं। तो आगे से वो चुप हो गया। कारी साहब ने छींटे के लिए हाथ जग के अंदर किया, कहता हाँ 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 मैंने उठाए हैं। कहाँ पे रखे हैं तूने? तो उसने कहा उसी कमरे के अंदर, वो जो फलां जगह है उसके नीचे, और फलां 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 समझा दिया कि उस जगह पे मैंने छुपा के रखे हैं। और उसने बताया जो इनकार करके गई थी मैंने ही आयशा का रूप धारा था और आके कहा था इसी लड़के को कि तुम शादी से इनकार कर दो, और वो जो आयशा के रूप में धक्का दिया था वो भी मैंने दिया था। उस घर में जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही थी वो सारी मानता गया और बताता गया। वो पानी उसको इतना तकलीफ दे रहा था। उसके बाद उसने कहा तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हारे इल्म से वाकिफ नहीं था, अब मैं जान चुका हूं तुम बहुत ताकतवर हो, मुझे जाने दो, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, वरना याद रखना मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मेरे कबीले के जो लोग वहां उसी दरख्तों पे आबाद हैं उनको पता है कि मैं तुम्हारे पीछे आया हूं, और याद रखना वो छोड़ेंगे नहीं। तो उसी वक्त कारी साहब ने एक और बात की, तू अकेला नहीं आया, मैं जान चुका हूं तू अकेला नहीं आया, तू जो तड़ी लगा रहा है, धमकी दे रहा है, तेरे साथ कोई और भी आया है, सच बोल कौन आया है तेरे साथ? उसने कहा हाँ वो चला गया है, मेरा एक कजन था, वो मेरे साथ आया था, वो घर वगैरह देख के चला गया है, अब वो जानते हैं मैं कहाँ हूँ, किस घर में हूँ, अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा, मैं वापस ना गया, कुछ भी हुआ तो वो ज़रूर इन घर वालों से बदला लेंगे, मुझे जाने दो, मैं चला जाऊँगा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हारे इल्म की ताकत से डर गया हूँ, मुझे पता है तुम मुझे मार सकते हो, मुझे जाने दो।
कारी साहब ने कहा, जब तुम कमरे में मौजूद थे और मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे उसी वक्त पता लग गया था इस कमरे में एक जिन मौजूद है। एक जिन ज़्यादा ऐसा है जो इतना शदीद ताकतवर नहीं है, लेकिन इश्क का मारा है या यहां आ गया है। अब तुम्हें मैं जाने तो देता हूं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं तुम कभी वापस नहीं आओगे। उसने कहा, इसलिए कि जितनी आपके पास इल्म की ताकत है, कुरान की ताकत है, आप मुझे मार सकते हैं, तो आप मुझसे जो भी कसम लेना चाहें, जो भी वादा लेना चाहें, ले सकते हैं। मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे मेरी जान अजीज़ है। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि इनको मार देता। हाँ, मैं इनको बहुत डराता ज़रूर। मैं रूप धार के मुख्तलिफ़ किस्म की इनको तकलीफ़ें बहुत देता, इस शादी में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता। और जब कुछ मेरे और कज़न भी मेरे साथ आ जाते तो शायद हम 2-3 लोग मिलके इनको बहुत खौफज़दा कर जाते और इनको इतना डरा देते कि ये शादी ना करते। मैं इसके वजूद के अंदर भी ना आता। मैं अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागा हूँ, क्योंकि आते ही आपने कमरे के अंदर दायरा कड़ा लगा दिया था। मेरे पास भागने के लिए रास्ता ही नहीं बचा था, दायरा कड़ा लगा था। तो मैं भाग के इसके वजूद के अंदर चला गया कि ये तो बहुत ताकतवर शख्स है, मुझे इससे बचना है। अब मुझे जाने के लिए रास्ता दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। कारी साहब ने कहा, ठीक है, फिर खा ये वाली कसम। उन्होंने यहाँ कसम भी एक लिखी है, जिनात की होती है, बताना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने उसको वो वाली कसम दी और कहा, अब वापस नहीं आएगा, नहीं तो याद रख, जिस जगह पे ये चाय पीने रुकेगे मैं उस जगह तक भी पहुंच सकता हूं, तेरे पूरे कबीले को भी आग लगा सकता हूं। उसने कहा, मैं नहीं आऊँगा। और उसके बाद वो उसके वजूद से निकला, और जैसे उसके वजूद से निकला, अहमद बेहोश होके नीचे गिर गया। कुछ देर खालू और वो वहीं पे मौजूद रहे और थोड़ी देर के बाद अहमद को होश में ले आए। अहमद को कहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी, परेशान मत हो, इसलिए ऐसा हुआ है। सब घर वालों को कह दिया गया, जो मर्द थे, कि किसी को बताना नहीं, सब क्लियर है। और उस जगह पे जाके जहाँ पे सोना, ज्वेलरी, सामान उसने छुपाया था, वो भी वहाँ से निकाल दिया गया। और आयशा के पास जाके भी उन्होंने पानी दम किया हुआ कारी साहब का उसको दिया, और आयशा कारी साहब के सामने आई। कारी साहब ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, अपनी बेटी का निकाह मैं खुद अपने हाथों से पढ़ूंगा, और बेटी ये पानी पी लो। उसको पानी पिलाया, पानी अहमद को पिलाया। और उसके बाद कारी साहब मुसलसल उस शादी में इस तरह शामिल रहे जैसे उस घर के फर्द हों। पूरी फंक्शन में वो उनके साथ रहे, लेकिन कोई भी चीज़ हो इससे पहले कि इनकी शादी में कोई रुकावट डाले, वो इसलिए वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो वाकई डर गया था, वहाँ से चला गया था कि शादी खैर व आफियत से हो गई, मेहंदी हुई, बारात का फंक्शन हुआ, दावत वलीमा हुआ, सब काम खैर व आफियत से रुखसती हो गई, दावत वलीमा हो गया। कारी साहब ने फिर उनसे इजाज़त चाही कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब बच्चे बच्चे खैरियत से हैं। और यूं वो शादी खैर व आफियत से हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। फिर जिन्होंने कहानी भेजी है, जो कहती हैं ये मेरी अम्मी की सच्ची कहानी है, फिर मेरा भाई पैदा हुआ, फिर मैं पैदा हुई, और बहुत अरसे बाद हमें भी ये कहानी सुनने को मिली थी। ये कहानी आज तक हमने किसी को भी नहीं सुनाई, किसी को भी नहीं भेजी। आपकी कहानियाँ सुनते हैं, इसलिए ये कहानी आपको भेज रहे हैं, ताकि आप भी इसको प्रोग्राम में शामिल कर सकें।